Hello, welcome to my show XOXO Gossip Girl. Today on my show, I have beautiful, multi-talented and versatile actor Nikki Narula. Hi Nikki, welcome Hi. to my show. Thank It's you. XOXO Gossip Girl. So Nikki, I'm so happy to have you on my couch today and I would like to know so many things from you, but just because we know that you're from film industry, you're acting, you're doing so good there, I would like to ask your experience in your film industry, any memorable moments or any moments which you do not want to remember at all. So yeah, you're right. Pros and cons are there, in all the industry. And as far as I remember, जो मेरा सबसे memorable moment है is obviously when somebody appreciates you, your acting skills. So it happened twice with me. One was I did an ad for Yes. I forgot the name of the brand. So I'm sure you're doing so many, so it's very difficult to remember, but anyways. yeah, so I went for the shoot and there was like montages होते हैं जैसे तो हाँ बहुत जी. सारे montages थे. Okay. So almost there must be ज़्यादा नहीं तो 50-60 actors तो होंगे. Wow. एंड मेरा नंबर वही इन द शूट आप इट्स नॉट अप टू यू आपका नंबर कब आएगा आप सुबह के 6 बजे के आए हुए हो एंड आपका सीन लग रहा है जाके शाम को 7-8 बजे वहां पे जब मेरा सीन लगा मतलब आई थिंक मेरा लास्ट सीन था हाँ जी. तो द डायरेक्टर ही वाज लाइक सो इम्प्रेस्ड विद माय एक्टिंग एंड ही सेड कि मुझे कोई रीटेक नहीं लेना पड़ा एंड ही वाज लाइक कि लिटरली लाइक ही वाज वो इतने गुस्से में थे कि वो मतलब गाली नहीं दे रहे थे बस बाकी एक्टर्स को तो ही वॉज लाइक कि बहुत मजा आया आपके साथ काम करके एंड यू जस्ट अ वन टेक एक्टर एंड ही वॉज लिटरली लाइक बैशिंग अदर एक्टर्स कि मेरे को इतना मेरा टाइम जाया हुआ है उनकी वजह से Right. so he literally he appreciated me and my skills so obviously that is one of my memorable moments and second memorable moment was I just did a movie Okay. with Tiska Chopra ma'am तो अच्छा. जो उनके mentor हैं he is the AD of that film Okay. Train to Chaprola Wow. yeah so when workshop हो रहा था like they basically workshop नहीं sorry interview था मेरा टिस्का मैम के साथ तो they were basically trying to gauge कि किसको हमने finalize करना है so they wanted to meet you personally and all that so जो पुष्पिंदर जी हैं he is also a head of this FTII in Pune Okay. yeah so Okay. he like इतने बड़े ओहदे पे वो हैं I और टिस्का know. चोपड़ा के मेंटोर हैं एंड उनके वर्ड्स मुझे नहीं भूलते तो दिस वाज जस्ट लास्ट ईयर एंड ही वाज लाइक कि यू नो व्हाट यू आर अ वेरी गुड एक्टर I'm sure. एंड यही करते रहना इसको छोड़ना मत पर तो ये सुनना भी और मतलब सिर्फ इतना सुनने के लिए वहां तक होना I think so it's commendable. Like, I have एग्जैक्टली seen your hard work. I've एग्जैक्टली seen that how much you put in your hard work, वहां तक जाना और it's not easy and I think so my viewers don't know about it that you live in Gurgaon and then for small projects and everything like even if you're gaining something out of it कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा but you take a flight you go there and you come so इतना hard work के बाद ये सब सुनना मेरे ख्याल से it is actually beautiful Absolutely. and very That's inspiring why, exactly. thing Because for you said कि memorable moment बताओ तो क्या होता है कि we all go through, I think everybody's actors के साथ obviously थोड़ा ज़्यादा होता है हाँ because जी. you go through like you go through so many rejections. बिल्कुल है ना हाँ जी. तो मैंने उनको बोला मैंने पुष्पिंदर सर को एक बार स्पेशली फोन करके मैंने बोला मैंने कहा सर आपने ये जो आपके वर्ड्स है ना तो जब भी मैं लो फील करती हूँ मैं आपके वर्ड्स याद करती हूँ तो फिर वो मुझे थोड़ा सा उससे थोड़ा हौसला आता है कि नहीं ठीक है और अगर मैं बोलूं कुछ ऐसे मोमेंट्स जो तुम बिल्कुल याद नहीं रखना चाहती something which you somebody must have triggered you or said something difficult. या इट्स लाइक मेरा जो ज्यादा रहा है वो थिएटर में लाइक दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब मैंने आई स्टार्टेड विद थिएटर So राइट is you want to say the theater is more tough or आपका be on a camera in a film industry stuff See, like which is more tough? मेरी जर्नी का अगर देखो अभी तक तो बिकॉज व्हेन यू गो टू लाइक जब आप सेट पे जाते हो तो सब कुछ आप ऑब्वियसली आप सिलेक्ट हुए हो लाइक इतनी सारी Definitely. एंट्रीज गई हैं और आप सिलेक्ट हुए हो सो दे नो दे हैव चोजन अ राइट पर्सन तो confidence level आ जाता है. हाँ हाँ एंड जी. they have that confidence in you Right. and obviously everything is all set Right, right right. it's very professional Right. like the whole atmosphere राइट तो उस हिसाब से तो आई फील कि जैसे थिएटर में स्पेशली
अब वही थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट देन मंडी हाउस, हाँ, यू नो, हाँ। आई फील कि एक ना हमने ये बना रखा है, एक बहुत सूडो एटीट्यूड है कि एक सपोज लेट्स से हम नसीर साहब के जमाने से बात करते हैं, वो अलग बात है, नसीर साहब खुद बैश करते हैं एनएसडी को, तो या सो द थिंग इज कि मंडी हाउस में सबका ये एटीट्यूड है कि दे फील कि इट्स वेरी सूडो कि किसी को डिमीन करना है, True. राइट तो कोई भी एक्टर आता है, तो मेरा थिएटर में बहुत ऐसा रहा है कि लिटरली आई हैव बीन ट्रीटेड लाइक अ कारपेट, like you know people will just walk over you, they will say so mean things to you, and the experience that I'm saying is कि मेरे को एक बहुत मन था कि मुझे एक उर्दू प्ले करना है, जिसके लिए मैं ऑल द वे मंडी हाउस तक जाती थी फ्रॉम गुड़गांव, एंड इट वाज चिलिंग, मतलब इट वाज 25th December is the coldest day of the month, that was the time when we were practicing, we were doing rehearsals, तो हमको चाय आती थी इतनी सी, 5 रुपए की चाय मिलती थी, वो कटिंग चाय की भी कटिंग चाय की भी कटिंग थी वो, Okay. मतलब कटिंग चाय तो इतनी होती है, वो इतनी सी 5 रुपए की चाय बिल्कुल, मिलती थी, बिल्कुल। कुछ यही नहीं कि एक्टर्स को कुछ लेना, चलो दैट इज स्टिल सेकेंडरी कि आप नहीं कुछ खाने पीने दे रहे हो, बट दिस डायरेक्टर ही वाज so rude, I literally had to request him, मैंने एक दिन I remember इसमें भी आपकी काफी मैंने सुना, जब भी मैं आपसे बात करती थी कि ये टेरेस पे हो रहा है और बिल्कुल ठंड है और रात रात तक बैठ के आप लोग कर रहे हैं, जब उसमें गालियां भी खा रहे हैं साथ में। यस, तो मुझे यहाँ तक लगता है कि एक थिएटर करना जहाँ पे देयर आर सो मेनी पीपल कमिंग इन फॉर ऑडिशन, आपके लिए आ रहे उसके, और वहां पे अपनी एक जगह बनाना डिफिकल्ट है, पर अगर आपको वहीं से लेके चूज करके सिलेक्ट करके अगर फिल्म इंडस्ट्री में बिहाइंड कैमरास, सो यू फाइंड दैट मोर इजी इन द सेंस, हाँ इट्स मोर रिस्पेक्टफुल, मोर प्रोफेशनल। सो मंडी हाउस में क्या है कि दे फील कि हम बैठे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हमारे थिएटर ग्रुप्स बने हुए हैं, तो हम आई डोंट नो किस बात का वो एटीट्यूड क्यों है इतना कि इफ समबडी इज कमिंग, जबकि आई वाज इन मिड 30s, राइट, मैंने लिटरली आई कॉल द डायरेक्टर एंड आई टोल्ड हिम कि सर आप मुझसे ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, जैसे आप बाकी बच्चों के साथ कर रहे हो, लाइक यू नो मे बी दे आर टीनेजर्स और बच्चे आ रहे हैं जो आ रहे हैं, बट आई एम अ वुमन, बट ही वाज जस्ट नॉट रेडी टू लिसन, एंड ही वाज लाइक कि नो यू नीड टू बी द डायरेक्टर्स एक्ट्रेस, एंड मेरी तो बहुत पहचान है बॉम्बे में, एंड लिटरली आई वाज लाइक, मेरी ना आदत नहीं है कि मैं किसी को उल्टा जवाब दूं, बट मेरे मन में ये सोचा कि अगर आपकी इतनी जान पहचान है और आप इतने वो हो, आपकी इतनी नेटवर्किंग स्ट्रांग है, तो आप यहाँ पे फिर क्या कर रहे हो, है ना, तो फिर आप खुद बॉम्बे में आपका कहीं पे कोई हमने कोई काम क्यों नहीं देखा, एग्जैक्टली, तो वो बातें सब बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वो फिर दिख भी जाता है कि कौन यू नो हाउ मच आप कितने दूर और कितने पानी में। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से, दैट एक्टर्स आर ऑलवेज हमेशा इतना स्ट्रगल करके जब वो एक मुकाम तक पहुंचते हैं, तो मुझे पता है कि कितना दे मस्ट हैव gone through, yes, right, and where they are, but it's very easy for other people to give and pass a comment for them, you know, it's so easy say look at her, how is she doing, look at that, but they don't understand कि वो कहाँ से कहाँ तक struggle कर करके उन्होंने अपनी एक मुकाम बनाया है। बिल्कुल, but मेरा ये अगले सेगमेंट में थोड़ा क्वेश्चन था, but I would like to ask you right now only, since you have just spoken about your ill treatment in your theater but अगर हम इसको हट के थिएटर से, मैं आप इसको अगर फिल्म इंडस्ट्री में पूछूं, तो क्या आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ये कास्टिंग काउच and what people talk about is, and where people get scared, half of them does not try because they're scared of this word casting couch, right? And some people say you need to have your guru to be there, like you know your godfather to be there to promote you and all, like other people, other very actresses. Good question. So I just want to ask you that does it prevail, and if it prevails, it is up to you, you would like to go for it, don't want to, because exactly, yeah, so exactly. what do you have to say about it? इसके मतलब हम कैसे इस चीज को एक डिफाइन करेंगे? Sure, so कास्टिंग काउच के लिए आई वुड से कि देखो एक जमाना रहा होगा जब चीजें ऐसी होंगी, यू नो, बट अब क्या है, कास्टिंग हाउसेज आ गए हैं, चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लीन हो गई हैं, एंड आई एम श्योर अभी भी प्रिवेल करता होगा, मतलब आई हैव नॉट हर्ड टू मच अबाउट इट, तो थोड़ा बहुत सुना है, बट मे बी फ्रॉम द थर्ड पार्टी, यू नो, एंड आई वुड जस्ट से वेरी क्लियरली कि कास्टिंग काउच कैसे हो जाता है, मतलब पहले भी अगर जमाने में होता था कास्टिंग काउच, there has to be a will,
nobody is raping you, right? It's a consent that you're doing. And this is the problem कि बहुत सारी ना, it's not even in this industry, मुझे देख के for women मुझे लगता है कि why are they not so self assured about themselves कि यार आएगा वक्त, चीजों को टाइम लगता है, and even if you get into it, it's not a guarantee that you'll get something, right? Right. So it's a choice that you're making. So ये जो casting couch का इतना मतलब हल्ला बना रखा है, लोग मुझे लगता है कि why they don't see the other side of the coin, right? एंड अभिषेक बैनर्जी हैं जिनका कास्टिंग पे लाइक जो हथौड़ा त्यागी जिन्होंने प्ले किया है, तो वे पीछे देख रही थी अभी यही पॉडकास्ट ही देख रही थी उनका. सो बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली मैम, एंड आई वाज रियलाइज बिकॉज उनका खुद का कास्टिंग हाउस है, तो वो एक्टर इतने माशाल्लाह इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो यू नो ही सेड कि अभी भी ना वो जो अभी आपने बोला कास्टिंग काउच एक वो बना हुआ है इमेज. So imagine people who are doing casting and who are having such big names in casting, उनको भी लोग जैसे उनके जो relatives हैं या जो उनको जानते हैं वो उनको मजाक करते हैं कि तुम तो कास्टिंग काउच करते होगे, like that. तो he was like कि हम उस चीज को ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हैं, right? तो ये जो आपका #MeToo और ये सब है and everything, like मतलब I think so it's there prevails. See, but exactly सब जगह corporates में नहीं होता. I feel कि why are you just demeaning the film industry? It's everywhere. Yes. And I would say 1.5 या 1% of कुछ अगर ऐसा Me Too जो आप कह रहे हो कि किसी ने आपके साथ जबरदस्ती करी होगी, and frankly कोई कमी तो है नहीं, मतलब कोई जबरदस्ती क्यों करेगा, मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आती, बिकॉज देयर इज सब तैयार हैं कुछ भी करने के लिए, व्हाई somebody needs to force you into something. True, that is right. True. हाँ अब सही है, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा था, वो बता दिया कर, तेरे को पता नहीं चल रहा, वो नहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो हम वो होता है ना हेयर वाले लोग साथ में, तुम्हारा तो सुनू है, तुम्हें साथ में बंदा रखना चाहिए, वो सुभाष जी. हाँ सुभाष जी को देखना चाहिए, ये सब बाल देखना से फोरहेड पे पूरा चमकेगा, ठीक है भी. निकी, या फॉर मी गुनीत, oh my god, that's such a confusion. People say नाम में क्या रखा है, हमारा तो काम ही काफी है, right? In your film industry this prevail, but I've also seen जितने भी बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, सब ने अपने नाम को चेंज किया. जैसे आपने गुनीत से अपने नाम को निक्की नरोला किया, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, but why so? Like, is there something to do with your numerology? Okay, no, right. No, it's not. I thought you're saying that. I'm saying no, it's not. वैसे तो I believe in numerology and astrology, but now, frankly, I think now I want to just like kind of come back के इन सब चीजों में बिलीव नहीं करना है, अपने टैलेंट पे बिलीव करो, है ना? बिकॉज एनीवेज उस पे हम बात पे आते हैं, बट आई टेल यू कि नाम क्यों चेंज करा. नाम सिर्फ सिंपल रीजन था कि मुझे ये गुनीत नाम कभी पसंद ही नहीं था, ठीक है? चलो, या एग्जैक्टली. एंड फेसबुक जब आया था तब मैंने गुनीत रखा था क्योंकि मोस्ट पीपल मेरा स्कूल का नाम था, तो दे वुड नो यू, आपको फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना है, तो निकी से कोई पहचान ही नहीं पाता, देम टू रिकॉग्नाइज यू एंड ऐड यू. ओके फाइन. बट जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया, आई वाज लाइक आई नेवर लाइक दिस नेम गुनीत. सो आई वाज लाइक ये बहुत ही ना, मतलब इट्स अ वेरी एल्डेस्ट, बड़ा आंटियों वाला नाम है, पर ये नाम ही मुझे लगता है आज आपको काम दिला रहा है. सो आई थिंक सो. थैंक यू सो मच. या इट वाज जस्ट माय गट पर्सनल चॉइस. आई आल्सो फील इट्स अ गट चॉइस. या मतलब मेरे को गट से ना ये आया कि Nikki is more quirky and more like it's like me. And it suits you. It suits me. It suits you. Nikki suits you. Yeah, it's easy for us also. Tell me one thing. आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपके साथ previously क्या हुआ, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, इसमें काफी मैंने देखा हद तक क्रिटिसिज्म भी इन्वॉल्व है. और अगर हम देखें हमारी डे टू डे लाइफ में, when we go to parties and anything, people do criticize and say something to us, but when we come back, आते हैं वापस, अपने फ्रेंड्स के साथ बात की, किसी को बोला, कुछ किया और भूल गए, बिकॉज ये हमारी एक डे टू डे लाइफ है, हम लोग भूल के आगे बढ़ जाते हैं. पर प्रोफेशनली अगर कोई क्रिटिसाइज करे और आपको वो सुनना पड़े, तो आपकी मोटिवेशन में बहुत फर्क पड़ता है, और आपको अगेन अपने आप को अपलिफ्ट करने में, लाइक हाउ डू यू हैंडल, कैसे आप इस क्रिटिसिज्म को हैंडल करते हैं? Yeah, I would actually like to tell all the actors here कि please take criticism in a positive way, अपने ऊपर काम करो, but don't take it so personally.
nobody can tell you that how good or bad are you, right? Definitely. Assess it yourself and it's okay. मतलब मैं सबको ये बोलती हूँ कि कोई भी अपनी मम्मी की पेट से हम कोई भी कुछ सीख के नहीं आता है, No right? one. Huh. Exactly. Right. We तो all it's a learned here. journey. Enjoy that journey, Right. right? And criticism का वही, जितनी मुंह उतनी बातें। वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ऑब्वियसली ये झूठ नहीं बोलूंगी, फर्क तो पड़ता ही है, यू नो। एंड आई रिमेम्बर लाइक अभी मेरा क्या है कि दिल्ली से मैंने अब काम, मुझे अब कॉल्स आने बंद हो गए हैं। मैं मेजरली अब बॉम्बे से ही काम करती हूँ। और ऐसा हुआ जब मैं एक उस थ्रेशोल्ड पे थी जस्ट आफ्टर कोविड, एंड आई डिसाइडेड कि अब मुझे अपनी फीस बढ़ानी है, यू नो, लाइक यू कभी तो आप अपना स्टैंडर्ड वो करोगे, we all do with right? time, with our efforts, Exactly. and definitely, as I said, from traveling from Gurgaon to Mumbai, and I also know you've taken a house there and everything. These are like expenses. You need to meet. कहीं ना कहीं तो आपको Exactly. इसको बिल्कुल पर दिल्ली में वेरी फ्रैंकली इतना जो मतलब जो हाल है मैं क्या बताऊँ, मतलब इट्स रियली रियली बैड। ओके, एंड ये कास्टिंग एक डायरेक्टर हैं जो सपोजिटली ये कहते थे कि मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, राइट। तो तो उन्होंने आपको हेल्प किया? नहीं, क्रिटिसिज्म की बात हो रही है ना अभी, तो तो मैंने उनको बोला कि अब मैं ये फीस नहीं चार्ज करती, ये एक्स ने मेरा अब वाई अमाउंट है, राइट। एंड छूटते ही हिज रिस्पॉन्स वाज कि देखते हैं फिर आपको कितना काम मिलता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये काम टैलेंट नहीं, कौन कम चार्ज कर रहा है उस पे लिया जा रहा है। Exactly. तो ये मतलब आप गेस कीजिए कि एक्टर्स कितने रुपए पर डे पे शूट पे राजी हो जाते हैं, जस्ट लाइक to be very honest, I don't think so I can say that. so the thing is कि but I think so we would like to know, it's a very meager amount 2,000-2,500 रुपए के लिए। You serious? Yes. और हमारा ये इंप्रेशन पड़ा हुआ है कि एक्टर्स हैं तो वाओ कितना कमा रहे होंगे, क्या होगा। उल्टा मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा लाइक एक डाउन साइड है, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट एक्टर्स होते हैं, यू नो व्हाई। अब एक मेकअप आर्टिस्ट आएगा वो तो अपनी फीस लेगा ही लेगा, Exactly, जो लाइट मैन है वो भी अपनी फीस लेगा ही लेगा, आप उनको मना ही नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉइट होता है वो होता है एक्टर की, हम तो आपको काम दे रहे हैं, आप तो कैमरा में आ रहे हो। ओके। तो फिर आपको मतलब क्या वो आपको आगे भी हेल्प करते हैं लीड्स रोल ढूंढने में या कहीं ऊपर जाने में? या आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगेन लीड के लिए आई थिंक यू नीड टू बी देयर इन योर स्किल्स, राइट? तो दैट्स व्हाट आई फील कि मैं कम काम कर लूंगी, अपने क्राफ्ट पे काम करूंगी, बट एक स्टैंडर्ड है, मतलब मेरे को करना नहीं है उतने के लिए काम। कि ये बोलना कि आपके पैसे इतने हैं तो अब आपको काम नहीं मिलेगा, मतलब ये सोचना कि आपके अंदर क्या वो टैलेंट नहीं है। आई नो इट्स वेरी डिमीनिंग। हाउ डू यू हैंडल दैट निकी? हाउ डू यू हैंडल, कैसे कर लेती हो कि ये सुनने के बाद भी वही फेस स्माइल लेके एंड एक्शंस लेके यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ पब्लिक एंड गिव देयर बेस्ट? कैसे मतलब? बिकॉज आई थिंक घूम फिर के ना क्या है कि वॉट यूर पैशनेट अबाउट, सो आई फील कि मैं इतनी पैशनेट हूँ उसको लेके। एंड आई थिंक जैसे क्रिकेटर्स हैं या कोई भी है अपनी फील्ड में, आप तभी सक्सेसफुल होगे इफ यू हैव दैट यू नो, वो अंदर से आता है कि ये मेरे को चाहिए, मतलब ये मुझे करना है, दिस इज माई ड्राइव, यू नो। आई थिंक इट्स जस्ट लाइक इट्स इटर्नल, वो ऊपर से बाबा जी की देना है। तो अभी मैंने रिसेंटली सुना कि तू अपना काम कर, Exactly. खामी निकालने के लिए लोग हैं ना, तो that's what exactly is for you. Exactly. तो अपना काम कर, criticism के लिए लोग हैं, go ahead, do what you feel the best for yourself. तो अपना काम कर। मैं आजकल मैंने अभी शैलेंद्र भारती का गीता सार सुना, गीता का सार, उसमें वही ये पूरे गीता के सार में क्या है, एक ही चीज है, क्रक्स की है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। That is it. कहा जाता है ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और इस इंडस्ट्री में तो आपको पता ही है फीमेल राइवलरी कितनी है। सो हाउ डू यू मैनेज, कैसे लोग आपको सपोर्ट करती हैं, आपकी फीमेल एक्ट्रेसेस इन योर फील्ड? यूजुअली मैं बहुत नेगेटिव बातें नहीं करती हूँ, बट ये एक फैक्ट है, और कोई सपोर्ट नहीं करता है, नो वन, कोई भी नहीं करता है। आपको अपना रास्ता खुद ही बनाना है। आई हैड जीरो लिंक्स इन द इंडस्ट्री, आई वाज क्लूलेस कि मुझे क्या करना है, एंड आई वाज डूइंग थिएटर, फिर उसके बाद मुझे कैमरा करना था, तो मैंने अपना रास्ता खुद ही बनाया है। देयर वाज नोबडी टू गाइड मी कि क्या होता है कास्टिंग हाउसेस, क्या ये नंबर है, इनके पास चले जाओ। हाँ, इक्का दुक्का कुछ लोग थे जिन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर हेल्प किया, बट ओवरऑल
आई थिंक एक्टर्स शायद हो सकता है, इट्स इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि दे आर इनसिक्योर क्रीचर्स, यू नो. सो सिर्फ आपने देखा कि फीमेल्स ही हैं जो आपकी मतलब कंपटीशन है, या कभी आपने ये भी नोट किया हो कि बिकॉज इट्स इजी, यू बीइंग अ फीमेल यू कैन आस्क अ मेल फ्रेंड फॉर रेफरेंस. वेरी गुड सो क्वेश्चन. डू यू थिंक दैट मेल्स आर आल्सो द डूइंग द सेम? एग्जैक्टली Really? ये चीज मुझे बहुत ही अजीब और मुझे हंसी आती है कि वाई आर It's मेन quite इनसिक्योर. surprising. मतलब वाई दे के नॉट हेल्प यू. अगर आप उनके पास Yes. जाके कुछ गाइडेंस लोगे, हाँ जी. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, तो मैंने किसी अपने कोई को एक्टर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, इफ आई आस्क देम, दे विल नॉट हेल्प यू, दे विल नॉट गिव यू द नंबर. वो कर सकते हैं ये Definitely. कि ये है, और वो इवन रेफर भी कर सकते हैं कि इनको देख लीजिए, बट इस इंडस्ट्री में बहुत रेयर होता है ये. कोई किसी को रेफर नहीं करना चाहता, कोई किसी को गाइड नहीं करना चाहता, सब अपने उसमें ही है, विच आई फील कि ऐसा होना नहीं चाहिए. इट्स नॉट इवन अबाउट वुमन टू वुमन, बट why not uplift, you know, why not help somebody? And I तो come from the thought process कि यार अगर आप आज किसी को help करोगे तो आपके लिए भी avenues खुलेंगे. True. You know, बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा आपने. ठीक है, आई मीन इट्स easier said than done, because as we say logically यही देखा जाए कि हम इतनी स्ट्रगल करके और इतने जदोजहद करके कहीं पहुंचते हैं, तो मुझे लगता है हो सकता है कल को मेरा भी थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाए कि यू नो मैं इतनी मेहनत से आई हूँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ क्या करना है. निकी चेंज होगी आने वाले टाइम में. आई रियली होप कि ना हो ऐसा. निकी, आपको जब एक रोल के लिए बुलाया जाता है और आपको एक पर्टिकुलर रोल दिया जाता है, सो हाउ डू यू गेट योर इंस्पिरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर रोल, और इज देयर इज एनी जॉनर यू प्रेफर? इंस्पिरेशन तो आई डोंट थिंक, लाइक आई कम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट, यू नो, कि आई डोंट वांट टू inspire myself in getting into the character. Like I just go with my own whatever comes naturally and just try to, you know, understand कि अगर हम उस सिचुएशन में होंगे तो कैसा होगा. एंड यूजुअली जैसे मुझे मदर का ही रोल मिलता है, तो आपको तो पता ही है ना कि मदर्स यूजुअली कैसी होती हैं, राइट? सो आरजे का मुझे एक रोल मिला, तो मेरे को आई वाज लाइक, यू नो, इट वाज अ टाइम लाइक आई वुड लव टू बी एन आरजे. एंड उसमें कोई डायलॉग्स नहीं थे, वो सारे डायलॉग्स जो आप देख रहे हो ब्रीथ इनटू द शैडोज में, वो सारे मेरे लिखे हुए डायलॉग्स हैं. वाओ, तो निकी इज अ इनबॉर्न टैलेंट. हाँ, तो वो जो डायरेक्टर वाज सो हैप्पी विद इट. इट वाज लाइक मैंने आई जस्ट काइंड ऑफ अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ, बट ठीक है, आई नो आई नेल्ड इट एज अ आरजे देयर. तो या आई लव दैट प्रोसेस, लाइक यू नो व्हाटएवर जो आपको सही लगे. इंस्पिरेशन तो मतलब क्या है? or any particular role, this thing you want to play? That's a good something question. which you're really looking for. Yes, that's a very good question. So ना बहुत लोगों को ये लगता है कि I have a very bubbly and like a chirpy nature है, Yes. तो मुझे usually वही मिलता है. Definitely. But लोगों को ये यकीन नहीं होता कि मैं नेगेटिव रोल कर सकती हूँ. एंड दैट इज वन जॉनरे आई वुड लव टू डू. और मैंने अनफॉर्चुनेटली मैंने यू नो एक बहुत अच्छा रोल किया था, नेगेटिव रोल, बट वो रिलीज नहीं हुआ. एज यूजुअल बहुत से एक्टर्स की आप ये कहानी सुनोगे कि हमने इतनी मेहनत करी, अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट रिलीज ही नहीं हुआ. और मैं बोलती हूँ कि यार प्लीज मुझे एक नेगेटिव रोल दो. पर ऐसे भी लोग हैं बहुत कम जिन जो ये समझते हैं. समबडी टोल्ड मी कि यू नो यू विल सूट, आप पे ये हसीना पारकर का रोल बहुत सूट करेगा. So I was like, yeah, that's what I want to do. Like, you know, Really? I know I'm gonna nail it. I want to do like the boss lady, like maybe like a doll, lady Dawn. Yeah, something like that. Even a cop जो भर भर के ऐसे माँ बहन की जो गालियाँ देती है, like you know, you would like to do I would that? love to do that. Take out all your frustration. Yes. Okay, that's nice. ये थोड़ा और वो हो गया ना कि comfortable हो गए हैं ऐसा. इसको ऐसे रख दूं? नहीं नहीं, अपने पास या ही ऐसे ही पड़ा रहा है? रख ले, ऐसे पास. नहीं ऐसे पड़ा रहा है ना, फिर यूं नहीं, फिर वो मैसी लगेगा. देख वो बताएगा मैसी लग रहा है कि सही लग रहा है. ऐसे ऐसे ही ना. हाँ देखिए, ज्यादातर देखा गया है, आप अभी ऑडिशंस के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, काफी रिजेक्शंस मिलते हैं. एंड एज वी वर टॉकिंग अबाउट हमारे क्रिटिसिज्म कितने मिलते हैं, इन सब में कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट आता होगा. इसी वजह से हमने देखा कितने सुसाइड का भी देखा, हमने लोगों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा. तो फिल्म इंडस्ट्री, हाउ डू यू पीपल मैनेज योर मेंटल हेल्थ? दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि गॉसिप गर्ल पॉडकास्ट में हमें ऐसा सवाल मिलेगा सुनने को.
often gossip is negative, but there can be a positive gossip Yes, also. definitely. Nikki. Definitely. But that's a beautiful question. It's very Yeah. close to my heart. And I want to tell all the actors that, you know, I feel it's very, very important. ऐसे तो हर किसी को करना चाहिए. But actors के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि please do meditation. Yes. You know, it's like meditation को ना हमने एक हवा बना रखा है. It's for everyone. और सारे बोलते हैं, मेरे को कितने लोग बोलते हैं हम नहीं बैठ सकते, 5 मिनट भी फोकस नहीं होता. बट एग्जैक्टली आपको शुरू में कोई ये नहीं है कि कोई कह रहा है कि आधा घंटा बैठ जाओ, आप 5 मिनट भी बैठो, इट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग. तो आप कहना चाहते हैं कि टू like have a good mental health, positive Exactly. attitude, you need to do meditation, you need to work on yourself. तो इसमें मेरे ख्याल से आपका सेल्फ लव सब कुछ आ जाता है, बिकॉज जरूरी आपको है. क्या है, एक तो आप सेंटर्ड हो जाते हो, राइट, आप में धैर्य आ जाता है. तो होता क्या है कि बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट माई सेल्फ, बिकॉज होता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो यू ऑब्वियसली यू वांट रिजल्ट्स कि हो क्यों नहीं रहा, यू नो लाइक दैट. तो हम थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं और चीजें जब हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती, हमारे हिसाब से हमको वो रोल नहीं मिल रहे होते, तो इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सबको लगता है बहुत मुश्किल है, पहाड़ जैसा काम है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि वो आपको सेंटर करेगा, राइट. और अगेन मैं गीता के सार के बारे में फिर से अगर मैं बात करूं तो 2 ही चीजें हैं उसमें कि एक उन्होंने इतना एम्फोसिस ध्यान के ऊपर है, उन्होंने यही बोला ध्यान लगाओ, यू नो. एंड आप एक्टर हो तो आप अपनी मर्जी से आए हो. मैं यही बोलती हूँ सबको कि चलो स्ट्रगलिंग बोलो या जो भी बोलो, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हो. किसी ने एक फील्ड ऐसी है एक्टिंग की कि कोई ये नहीं बोलता कि बेटा एक्टर बनो. बहुत रेयर कोई फैमिली होगी बोलेंगे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, क्रिकेटर भी शायद ओके, बट एक्टर के लिए अगर फैमिली एक्टर से, अगर उनकी एक्टिंग से कुछ लेना देना नहीं है अगर फैमिली का, तो बहुत रेयर आप देखोगे कि कोई बहुत खुश होगा कि अरे तुम्हें एक्टर बनना है, बिकॉज उनको पता है कि इट्स नॉट इजी. जिस तरह से आपने कहा कि पीपल आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिली एज वेल, और इसमें मैं खुद ही आपके लिए बोलना चाह रही हूँ कि आपकी फैमिली में कोई भी दूर दराज तक मुझे नहीं लगता कि एक्टर है. एंड यू हैव अ वेरी परफेक्ट फैमिली. यू पीपल आर inshallah very very well Thank to do you. people Thank also you. and for you to travel from one place to another and to do acting, getting into, no easy नहीं रहा होगा. तो इसमें भी आपकी family support and all is quite good. I suppose. मतलब गुड है इन द सेंस कि यार देखो, मैंने अपनी एक वीडियो भी डाला है इंस्टा पे, मैंने डाला भी था कि पहले सारे बहुत एंटी थे, है ना, तो इसलिए मेरी जर्नी भी इतनी लेट स्टार्ट हुई है. मैं तो बचपन से ही करना चाहती थी, कॉलेज में करना चाहती थी. तो पहले फैमिली साइड मतलब मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम था, फिर ऑब्वियसली आई डोंट ब्लेम माई इन लॉज, बट यू नो इट्स वेरी न्यू. कौन ये सुनना चाहता है कि हमारी बहू अच्छा एक्टिंग करनी है तुमको, मतलब यू नो लाइक आई टोटली गेट फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. निकी, इनमें इस बात पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी. हमारी भी फैमिली में एक लड़की ने काफी अच्छी एक्टिंग किया, सब कुछ किया. इनफैक्ट उनकी डॉटर करती थी, और एक दिन उनको भी ऑफर आ गया बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. और उन्होंने एक एड किया, और एड उनका होर्डिंग बन के एक कॉर्नर पे एक उस पे लगाया गया, अच्छी होर्डिंग लगाई गई. And one day, one of our very old relative from a like place was traveling and coming, and the minute she said कि बुआ जी क्या पियेंगे आप, क्या लेंगे, and ऐसे अब यही घर से पीना रह गया जहाँ की बहू बेटियां टंगी पड़ी हैं सड़कों पर. So I remember people saying it, and how they do not support, and they say कि imagine saying that कि टंगी पड़ी है, imagine a hard work and you just simply coming. So I'm sure आपने भी काफी इस बात पे टचवुड उस इतना ज्यादा they are not like this कि कि they are not negative about it. It's just that when I started the journey, then obviously एक अजीब सा बात है, लेकिन obviously उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैं जा पा रही हूँ बॉम्बे. एंड अभी मेरी इंशाल्लाह बेटी बड़ी हो गई है, तो she is 17 years now. Congratulations, and I know it was a birthday also. Yeah, thank you. Yes. तो उस हिसाब से नहीं, my in-laws are very supportive. I'm just saying कि initially वो जो hiccups होते हैं, like you have that, because again वो industry को लेके जो एक बना हुआ है कि जैसे just because of this casting couch and all कि my dad didn't want me to go into the industry. So एक वो एक जो भी बना हुआ है, एक impression बना हुआ है. So but जब फिर मैंने जिद करी कि नहीं मुझे तो करना ही है,
Nikki, I'm हाँ really very proud of you because I have seen it that you know, और ये मेरे ख्याल से एक अंदर का जज्बा है जिसे मारना नहीं चाहिए. एक this is what you call self love when you tell, when you talk to people, say that this is what I would like to do, this is what I want to be. yeah But exactly and how beautifully you take help from everyone, and everyone is like you know now in your area, and yeah they are supporting you and everything. This yes is very beautiful and yes commendable. ये आपने बात एक पॉइंट अगर आप देखो तो यही बात इतनी सही बोली कि जब आप अपने आप को सपोर्ट नहीं करोगे ना तो आपको लोग सपोर्ट नहीं करेंगे. You have सो to prove यू yourself. हैव टू या एग्जैक्टली पहले आप अपने आप को तो सपोर्ट करो. बिल्कुल. पहले आप अपने आप को जब प्यार करोगे ना तो लोग भी समझ जाएंगे इवेंचुअली. बिल्कुल सही बोला आपने इस बात को. मुझे अब आपसे जल्दी जल्दी या बिना सोचे अच्छा कुछ सवाल के जवाब चाहिए. ओके मुझे बताइए कोई एक गॉसिप बिहाइंड द कैमरा. ओह गॉड Don't have to think. Just skip whatever Seriously? comes. Yes. I will not take names, and this No person worries. is not there anymore. He was a A-lister actor, and बहुत उसकी controversy भी हुई, Okay. right? But I know as I said कि सबको जो दिखता है सब वही देखते हैं. Nobody wants to see the other side of the coin. Right. So there are a lot of dark truths in the industry. Yeah. Yeah. So there are like you know जो सुनने में आता again. So what is that सुनने में gossip? आता है it's a gossip. What is that कि gossip? there are like जो भी जितने भी बड़े A-listers हैं they do something like आजकल एक सिंगर भी हैं जो काफी सुर्खियों में है इस वजह से. So Illuminati and you know Saturn worship and all that. तो ये सब मैंने सुना हुआ है एंड या सो यू नो लाइक सबको वो दिखता है कि ओके दिस पर्सन इज नॉट एनी मोर. आई डोंट वांट लाइक डिस्कस टू मच बिकॉज अब वो रहे नहीं है. बट उनके भी कुछ डार्क साइड थे जिसके बारे में किसी ने, मैं हैरान हूँ कि सबको इतनी एम्पैथी हुई उनके लिए बट किसी ने डार्क साइड के बारे में बात ही नहीं करी. वो बात निकल के ही नहीं आई कि उनकी तरफ से भी कुछ इश्यूज थे. मतलब यू नो कि doing these kind of worships and so many actors are into like big time they are into drugs, you know, they are not able to handle the fame कि you know there can be so many reasons. पर उसको कितना उन्होंने मतलब मुझे ये लगा कि मतलब ठीक है I mean But there are so many other हम things. इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है क्योंकि मैं डे टू डे लाइफ में कभी बैठ के इस बारे में सोचती हूँ जब हमें भी काफी अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है. तो मैं सोचती हूँ दैट यू नो एज दे से यू नो द अल्कोहल यू गेन वेट and you know that every time Precisely. it's not available. Precisely you need to have the a reason. setup and all. Exactly. So I feel like you know and every so it's easy for them you know to Exactly. have those drugs and then get into the yeah precisely the reason because frame. alcohol से आपका retention होता है and I've heard मैंने कभी किया नहीं है so मुझे उधर जाना भी नहीं है but I've heard कि because drugs also help you like you know lose weight या आपको maintain रखता है or So whatever. maybe that could be the reason for them and that's the pressure. We can say it's a pressure. They It's have to be depressing. like you know. and it's depressing also no. It is depressing for that. हम फिर वो कह सकते हैं कि आप अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान ध्यान रखिए नहीं साथ दे साथ रहे. अपने सेल्फ लव पे भी ध्यान Exactly. रखिए. So this is मुझे जहाँ तक लगता है ये कॉम्बिनेशन है. इस Combination कॉम्बिनेशन है, को बिल्कुल. बना के रखना और ऊपर बढ़ने में ही आपका फायदा है. Exactly. Otherwise again then you know either you're not there or you're there. Yeah. Right? So I have one more gossip. Like Yeah. it's not exactly a gossip, Yeah. but yeah, I do say when I see people like A-listers like you know Alia Bhatt. Right. So when I did ad with her, she was so humble. She was so sweet. You know, I told her like, She's cute, na? yeah, she's very nice, and she, you know, you could see वो respect कि okay, she's doing an ad with me. Select हुई है आई है तो she took a picture and here we are like you know there are actors like I would say shall I take names I mean Please do. Nobody is coming here and asking. yeah but please I do. know so you know ईशा तलवार जो मिर्जापुर Okay. 2 में मुन्ना भाई की वाइफ बनी है Right, पॉलिटिशियन right, थी right. तो I really loved her performance and we were actually doing one same acting workshop कर रहे थे नीरज कबीर सर की कर रहे थे and I went up to her and I complimented her you know I was like I really liked the performance and she was so rude. Really. She was so arrogant and you know उसी what did she say? What did she उसी tell you? वक्त that image you know just dropped. But what did she do that you got that? She didn't even say thank you. She just looked at me So okay you got fine. you managed to click a picture with her. जो बंदा थैंक यू नहीं बोल रहा और ऐसे देख रहा है वो पिक्चर क्यों क्लिक करेगा. और मुझे पिक्चर क्लिक करनी भी नहीं थी वैसे फ्रैंकली उनके साथ कि मतलब ठीक है मुझे वही लगा कि ओके आपने एक प्रोजेक्ट करा वो चल गया एंड दैट्स व्हाट आई एम कंपेयरिंग कि मुझे लगता है कि जो A-listers हैं बिग नेम्स हैं वो उतने हम्बल होते हैं.
So मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में अपने आप को ऊपर करने के लिए you need to Exactly. be humble also. Exactly. And I have Humility seen आपको all आगे लेके A-listers. I जाएगी. have seen everyone. आप शाहरुख जी को ले लीजिए, सलमान जी के लिए इतना Exactly. हमें सुनने इसलिए को वो वहां मिलता पर है है. क्योंकि वो humble है. दीपिका को देखिए, like Exactly. Sushmita Sen. I have They are never. so humble. They're so humble. They're so nice. Exactly. And whereas you see the small artists of TV actors and हाँ. actresses, my God, even if you like, so okay, I'm a makeup artist, so even if I say that, you know, if I propose something and all, and the kind of attitude you get Oh my to God, it's crazy. see, it's crazy. I Yeah, really agree yeah. with you. It's not very welcoming. मुझे लगता है कि यार ऐसा क्या कर दिया तुमने, ऐसा क्या उखाड़ा है Yeah, कि तुम yeah, इतने yeah. ठीक है, मैं फाइन, So maybe- मिर्जापुर इज अ बिग प्रोजेक्ट फाइन, बट यार कोई आपको, आप एक्टर हो और आपको तो हम्बल होना बहुत जरूरी है. एनीवेज इफ यू आर अ गुड एक्टर यू शुड बी अ हम्बल पर्सन. So I wish in हम सब स्मॉल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को एक्टिंग देखने के अलावा उनके हम्बलनेस, उनका रहन सहन, उनका वे ऑफ टॉकिंग टू पीपल शुड आल्सो वी शुड लर्न. दैट्स बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल, दैट्स आल्सो वेरी बिल्कुल. इंपॉर्टेंट. आपने अपने बारे में नॉर्मली फिल्म इंडस्ट्री में टेल मी समथिंग, कुछ फनीएस्ट, कुछ विशियस, कुछ जो सुना, कुछ एक बात बताइए. फ्रैंकली आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कुछ गॉसिप अपने लिए सुना, नहीं तो मुझे समथिंग फनीएस्ट. फनी भी नहीं, मतलब आई जस्ट फील कि लोगों को ये इम्प्रेशन है कि बिकॉज आई हैव बीन एन पार्टी एनिमल. एक वक्त था जब आई वॉज अ पार्टी एनिमल, तो लोगों को ना ये लगता है कि ये तो बस पार्टी करने जाती है बॉम्बे, मतलब काम तो क्या ही होता होगा, है ना, कि क्या है, ठीक है इसकी तो हॉलीडे बन रही है. सो दे डोंट नो द जर्नी कि हम बॉम्बे में, अच्छा फिर जब वापस आते तो हर कोई अच्छा हो गया, क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, ये वो, तो इट्स लाइक यू नो. हाँ, तो मेरे को ये नहीं है कि यार कोई थाली पे नहीं, कोई यू नो सजा के नहीं बैठा है मेरे लिए प्रोजेक्ट और रोल. वक्त लगता है चीजों को. एंड अगेन एज यू सेड कि गॉड फादर नहीं है हमारा कोई, एंड आई एम नॉट सेइंग इन अ नेगेटिव वे, बिकॉज आई फील कि ये हर इंडस्ट्री के लिए कि अगर आपका गॉड फादर, अगर सपोज आपके फादर कॉर्पोरेट में किसी अच्छे लेवल पे हैं तो ऑब्वियसली आपको काम मिलना आसान हो जाएगा. इट्स अ नेचुरल. सो ये नेपोटिज्म और जो भी आप बातें बोलते हो, आई डोंट गिव एनी टू हूट्स टू दैट. Funniest thing is that you go, you work, but people think your party बस is ये तो coming back. मजे हो रहे हैं इनके तो. This हाँ, is the most this thing. And what is the exactly. vicious thing have you heard about yourself? विशियस थिंग तो मैंने अभी ऐसी कोई सुनी नहीं. एंड अभी आजकल क्या है ना, वही मेडिटेशन की वजह से आई मीन बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं. माय होल पर्सनालिटी हैज चेंज एंड नाउ आई बी विद वेरी लिमिटेड पीपल जिनके साथ मैं कनेक्ट करती हूँ. सिर्फ बहुत ही लिमिटेड मेरी एक वो ट्राइब है. तो कहाँ से यही सुनने मिलेगा, यू नो. पर ये बात तो मैंने बहुत नोट करा, अगर आपको किस ऊंचाइयों पे बढ़ना है या कहीं आपको पहुंचना है तो आपको अपने लोग, अपने आसपास के लोग बहुत सिलेक्टिव रखने पड़ते हैं. बिल्कुल. आप भीड़ के साथ नहीं चल सकते. बिल्कुल. तो आई थिंक सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. Exactly. राइट, फॉर Exactly. योर ग्रोथ, So to true. be with the right So people, true. right, to push you yeah up. and True. so many people they would come and say like industry के नहीं but हाँ जी. बाहर जो फैमिली है या you know जो जिनको नहीं पता या जिनको एक नोशन है, they will come up to me and they will say कि अरे पार्टीज में जाया करो, तुमको रोल्स चाहिए तो बॉलीवुड पार्टीज होती है, ये करो वो करो, you know. but I'm like कि भाई मुझे काम करना है एज एन एक्टर, तो मुझे यही आता है and I cannot do these kind of things कि पार्टीज में जा रहे हो तो वहाँ पे जाके क्या करूँ. I can't go with a begging bowl कि मुझे काम दे दो, you know, like that. Are you getting what I'm saying? And you know, just recently I just realized one thing कि हम ये बोलते हैं कि beggars are not choosers. So I want to tell everybody that no, beggars are choosers. You can choose not to beg. First of all, yes. And secondly, you can choose. अभी आज भिखारी को आप 5 रुपए पकड़ाइए, वो आपको वापस दे देगा, वो बोलेगा मेरे को अपने पास रखिए आप. So this means beggars also have a choice, right? Right. You're so right. You're so right. देखिए जैसा आप जानते हैं, Gossip Girl is my show all about, and I would also like to ask you कि आपका gossip buddy कौन है? That goes without saying. मतलब मुझे सोचना भी नहीं पड़ेगा. She is my soul sister. Like she is my first cousin. तो या मतलब मेरे को सबसे ज्यादा जो गॉसिप करने का मजा आता है ना, वो उसके साथ आता है. मतलब मजा तो क्या, वो एक बन गई है ना, लाइक एक वो बन जाता है, यू नो, दैट एटमॉस्फेयर, बिकॉज शी हैज सो मेनी थिंग्स टू टेल.
आई हैव सो मेनी थिंग्स टू टेल. कुछ भी छोटी कुछ भी बात होती है तो वी टेल ईच अदर. Right. फिर उसका हम पूरा उसका डाइसेक्शन होता है कि उसने ऐसे बोला तो उसका क्या मतलब होगा, या उसको ये नहीं करना चाहिए था. हाउ इट इज. This is human, we like to at least sometimes calculate or sometimes just try to figure it out. I would ऐसा say कि हुआ हमारी क्या हुआ, gossip जो है ना, it's more of calculations की. हाँ. यहाँ कई बार हम अपने आप को भी Avoidable assess भी हो करते हैं. जाती हैं फिर कई चीजें इस वजह से. Exactly, Right. exactly. So true. So your gossip buddy is your soul sister. Yes. Sure. Hats off to her. Since we are now about to wind up our show, I would like to know what Nikki says. Okay, so I think मुझे ना बहुत लोग मिलते हैं फैमिली में, फ्रेंड्स में, दे वुड से एंड दे रियली अप्रिशिएट मी कि यू आर सो इंस्पिरेशनल. आप कि यू नो व्हाट यू हैव टू डू इन लाइफ एंड आप उसको सीख कर रहे हो. बट व्हाट अबाउट पीपल जिनको पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है, मतलब जो क्लूलेस हैं कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ में. तो उसके लिए आई वुड से देयर आर टू थिंग्स. अगेन यू से कि ये तो मतलब गॉसिप गर्ल से तो आप इसको मेडिटेशन गर्ल बना रहे हो, बट वन थिंग इज कि आप करिए लाइक सीख अपनी अवेयरनेस से डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलेंगे कि what is it that you love, maybe it's photography or whatever, but we don't realize it like कि उसको हम बढ़ावा नहीं देते बिकॉज हम सेल्फ डाउट में इतने रह जाते हैं कि अरे इतना कौन करे, लेजी हो जाते हैं whatever. So आप एक बारी मेहनत करके सीख what you want to do. And secondly अगर आपको तब भी नहीं मिलता तो मुझे ये जरूर लगता है कि हर इंसान का पर्पस ये तो होता ही है कि हेल्प द अंडर प्रिविलेज्ड. True. डू सोशल सर्विस. आई मीन वो आप करोगे तो आपको लगेगा कि आप कि आपने कुछ अचीव किया. आप कितना भी पैसा कमा लो, आप फेम कमा लो, वो सब सेकेंडरी है. वो छूटता जाएगा, आपको और आगे 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 चाहिए, राइट. बट इफ यू डू सोशल सर्विस इन एनी फॉर्म, किसी किसी लड़की को की एजुकेशन के लिए आपने दे दिया, किसी भूखे को खाना दे दिया, तो आपको ये लगेगा कि यार मतलब यू विल फील सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ. So Nikki says, please find one talent inside you and work hard for it. But in case if you are not able to, तो आप इसको गिव अप मत कीजिए. किसी भी अंडर प्रिविलेज लड़की के लिए या किसी भी इंसान के लिए आप कुछ ना कुछ करने की मदद जरूर कीजिए. Yep. That's nice, Nikki. That's very sweet. Thank you. Nikki, it was so nice, so beautiful to have you on my show and to see and to know so much about behind the cameras, in front of the cameras and everything. The pleasure was all mine. Thank you so much. Thank you. I loved the concept and I loved gossiping with you. So best of luck for your show. Thank you so much. So here now we are signing off with Nikki from my show XOXO Gossip Girl.